Hey, नमस्कार, वेलकम एंड दिस इज द 17th एपिसोड ऑफ द नीरव हिंगू शो। और आज का हमारे एक स्पेशल एपिसोड है, वो है ओशो जैन कार्ड के ऊपर में। आपने टैरो डेक कार्ड तो बहुत सुना होगा, लेकिन ओशो जैन कार्ड बहुत कम लोग जानते हैं। अब ये क्या है ओशो जैन कार्ड और इस पर कैसे काम किया जाता है, उस पर आज हमारे साथ में हमारे गेस्ट स्पीकर मीनल अग्रवाल जी फ्रॉम मुंबई। तो मीनल के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बिकॉज कि इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत सारे इनसे प्रश्न पूछने हैं। तो मीनल इज बेसिकली फ्रॉम मुंबई एंड शी इज अ चार्टर अकाउंटेंट एंड ऑल्सो शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड there is a very deep urge to learn about the occult science, so she enter into the Zen card reading, जिसको हम कहते हैं ओशो जैन कार्ड रीडिंग। तो ओशो जैन कार्ड रीडिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, इस पर हम मीनल जी से बात करेंगे। सो नमस्कार मीनल जी, एंड नमस्कार करता हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने समय निकाला और मेरे लिए और मेरे ऑडियंस के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। तो वेलकम टू माय शो मीनल जी। मीनल जी, पहला ही क्वेश्चन मैं शुरुआत कर देता हूँ, पर वो आपसे ही करता हूँ। मैंने तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया आपके बारे में, फिर भी आपके बारे में जानना चाहूँगा हाउ you get interested toward occult and you move into the, because you're not in completely full time in जैन कार्ड रीडिंग। लेकिन कैसे इस तरफ का आपका रुझान बढ़ा कि एक कॉमर्स ग्रेजुएट इंसान रहता है जो फाइनेंस वाला रहता है, उसकी इस तरफ में एक इंक्लिनेशन बहुत कम जाता है। ओवर टू यू। यस मिनल। Good evening, Neerav. Firstly, thank you so much for this great opportunity to, to give for me to have this podcast and to interact with you and your viewers. It is a great privilege and honor. So, thank you so much for giving me this opportunity. Firstly, या। about me, जैसा आपने पूछा, I have started my professional career with a finance degree. I'm a semi CA and a company secretary, and I'm also having my corporate career, which is going on at the moment. ओके। I always had an interest in the occult sciences. I always found it very fascinating. How the planets and how maybe cards can tell you about your future and how the spirits and universe can guide you. ओके। So at present, my own mother is an astrologer वाह। and she is a Vastu consultant. So it also, further piqued my interest into the occult sciences. But I was always short on time and I wanted to learn something which, which would be faster and easier to learn and would also be more connected with my spiritual growth. So I found tarot cards very interesting in that sense. And that's how I decided to pursue a course in tarot reading. दैट्स ग्रेट। सो चलिए सीधे प्रश्न पर ही आता हूँ। और जी। पहली बात ये है, पहला प्रश्न कि हाउ द ओशो जैन कार्ड वर्क एक्चुअली एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद द जैन रीडिंग। ये कैसे, इसके पीछे फिलोसफी क्या है ओशो जैन कार्ड की, क्योंकि कई लोगों को तो जो जैन जी जनरेशन, उनको ओशो ही कौन है ये भी नहीं पता होगा। तो कार्ड की रीडिंग तो अलग ही बात है। तो द सिंपल क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द फिलोसफी बिहाइंड द ओशो जैन एंड हाउ इट इज कनेक्टिंग विद द जैन रीडिंग। So Osho Zen cards were basically a set of cards devised by Master Osho. जो you must be knowing, he is very famous in terms of his philosophy. अगर आप मास्टर ओशो के बारे में पढ़ते हैं, so he has given a lot of spiritual readings and basically techniques to live life. कि इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, किस मॉरल्स पे जीना चाहिए, उसके ऊपर उनके बहुत सारे lectures and spiritual kind of guidances are available. He also set out a set of cards, जो Osho Zen cards आज हम जिन्हें बोलते हैं, ओके। on basis of his philosophy of inner engineering. This is based on what our how our soul travels and ओके। how we should recognize signs from the universe and signs from nature which is around us, which can help us to make better decisions about our lives and understand what the universe is trying to tell us. So this is basically the philosophy behind the Osho Zen cards, and that is what we try to understand through the Osho Zen cards. ग्रेट ग्रेट मीनल जी। मीनल जी, अगर बात ये करती तो पहला एक आता है इंसान, ये कहाँ हेल्प होती है, व्हाट इज द यूटिलिटी, डज इट हेल्प इनटू द सेल्फ डिस्कवरी एज वेल एज
इनटू द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कुछ इश्यूज आता है, कुछ सेल्फ अवेयरनेस चाहता है, जो भी इश्यूज आते हैं, क्या इसमें ये हेल्प करता है सेल्फ डिस्कवरी में? बिल्कुल नीरव। सो इसमें इट कैन हेल्प यू विथ एवरीथिंग, इट कैन हेल्प विथ ऑल काइंड्स ऑफ walks in life, something as basic as how maybe your day would be. You can pick out cards for that. ओके। Maybe if you are not feeling good on how your mental state is, agar if you have anxiety, you have depression, so it can also give you guidance on what you should do. Or ओके। maybe it can exactly guide you to, maybe you can go out in nature or maybe connect with someone. Your exact guidance would appear in a tarot. So ओके। it can be something as small as how your day can be, and something as big as relationship problems, अरे वाह। marriage problems, that when I would get married, something of that sort, अरे or what career is beneficial for me. अरे वाह। So all kinds of questions, as per your understanding and as per your soul connections, can be answered via tarot. अरे वाह, सुपर। तो ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को भी मात तो दे रही है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में हम यही क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढते हैं कहीं ना कहीं पे, कि शादी कब होगी, रिलेशनशिप कैसे रहेगा। दैट्स अ ग्रेट। वन मोर थिंग, कि व्हेन वी टॉक अबाउट गेटिंग अ रीडिंग, तो हाउ अ पर्सन, अ लेमैन शुड अप्रोच अ ओशो जैन कार्ड? उसको पता कैसे चलेगा, अप्रोच कैसे करना है उसमें, उसको क्या अप्रोच रहेगा? अगर मान लो मैं आपके पास आता हूँ, देन हाउ शुड बी माई अप्रोच? हाउ शुड आई शुड कंसल्ट और कनेक्ट विद ओशो जैन कार्ड? और मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि ओशो जैन कार्ड मुझे नहीं लगता इतने रीडर्स हैं इंडिया के अंदर में, ग्लोबली आई डोंट नो, बट इन इंडिया वेरी लेस अवेयरनेस अबाउट द जैन कार्ड। तो व्हाट इज द अप्रोच फॉर अ पर्सन टू कनेक्ट फॉर अ रीडिंग? उसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है क्या? बहुत सात्विक होनी चाहिए, डाइट अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ है, या कोई भी आ सकता है? नहीं नहीं, नीरव जी, so for any reading that you want to have, you हम्म। don't need to do anything. You can be any person, any age, कभी भी, किसी वक्त भी. But advisable is to always do the readings before sunset, अच्छा। to get a better impact. हम्म। And you can just connect with your tarot reader, जो भी आपका ओशो ज़ेन का tarot reading करेंगे. The हम्म। ideal way is to meditate with the reader for हम्म। 2 minutes before asking your question. ओके। Then the reader will spread your cards. ओके। And once your cards are spread, then you can ask your question. And then आपकी energies, by virtue of your meditation, gets connected with the cards. And that's how your answer will come. So या तो your reader himself will pick up the cards for you in alignment with your question, or you yourself can also say which cards are to be picked up once you frame your question for the ओके। reader. So that's how your reading is done. तो अगेन, बिकॉज यहाँ दो चीजें हैं, कि आइडर द रीडर, जो ओशो जैन रीडर है, वो आपके लिए लेगा, या फिर आप अगर सामने तो आप ले सकते हो। तो इसका मतलब ये ऑनलाइन भी हो सकती है, इनकेस देयर इज अ डिस्टेंस। जी, ऑनलाइन हो सकती है. आइडियली द रीडर शुड नॉट टच द डेक ऑफ द कार्ड्स. ओके। सो आइडियली द जो भी सॉरी द क्लाइंट या जिसका भी क्वेश्चन है, दैट पर्सन शुड नॉट टच द कार्ड्स. द कार्ड्स आर एक्टिवेटेड ओनली बाय द एनर्जी ऑफ द पर्सन राइट सिटिंग ऑपोजिट. अच्छा So अच्छा। just in order to catch the vibrations, only the reader must pull out the cards. ओके। So having said that, this consultation can be done online as well, because we are working by virtue of energies and vibrations. ओके। 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 गॉट इट, गॉट इट। अभी यहाँ पर एक, मुझे लगता है आपको भी ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे अबाउट द फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो इट इज पॉसिबल थ्रू द जैन कार्ड वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर, और इट कैन ओनली हेल्प यू इनटू द स्प्रेडिंग द इनर अवेयरनेस? So Nirav, we can predict about the future, हम्म। but we can predict about a set time period in the future, ओके। which can be, say, suppose an event happening within a set time, like whether you can say within a year, within 6 months, within 3 months. On basis of specificity, we can predict whether something will happen or not. ओके। एंड अगर बात इससे की जाए, तो ये इसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं सीखने के लिए? क्या इसके लिए कोई बिगिनर लेवल पे कोई अगर करना चाहता है, मान लो मैं सीखना चाहता हूँ, एकदम नया हूँ ऑकल्ट में, तो उसके लिए कोई प्री रिक्वेस्ट है? लाइक
यू हैव टू गो टू द वेरी डीप मेडिटेशन, या बहुत आपका स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, या ऑकल्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हो? कोई पैरामीटर्स है इसके ऐसे सीखने के लिए? nahi, there are absolutely no parameters to learn this. This is, I think, a God's gift that comes into your life, हम्म। something which, which can help you to help others. हम्म। Uh, if you are spiritual, if you have, a connection with God in terms of daily puja or हम्म। daily some meditations that you do, it is encouraged and it is appreciated if you do something of that sort. However, it is not compulsory that you need to do this to learn the cards. ओके। This is a very simple learning, and Master Osho has given a very simple way to learn the cards and to connect with the cards. ग्रेट। अच्छा, अगला प्रश्न मीनल जी ये रहेगा कि अभी मान लीजिए कि बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, सुपरस्टिशन रहते हैं, इसे ये नहीं करना चाहिए, इसे ये नहीं तो इज देयर एनी स्पेसिफिक मिथ्स कनेक्टेड विद ओशो जैन कार्ड जो स्प्रेड, जो फैली हुई हैं इंटरनेट पर या आमतौर लोगों के अंदर में, जो आप बताना चाहोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत चीज़ है? यानी मिथ्स आर है रिगार्डिंग द ओशो जैन कार्ड? कोई स्पेसिफिक कार्ड है, जैसे वो टैरो कार्ड में आता है, डेथ का कार्ड आता है तो लोग एकदम डर जाते हैं, मेरा तो डेथ का कार्ड आ गया तो मतलब मेरी मौत होने वाली है। आई नो वन पर्सन, वो किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए थे तो उसने बताया कि आप तो डेथ का कार्ड है तो आप बहुत जल्दी मरने वाली हो। तो वो इंसान उसी घबराहट में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, फिर मेरे पास आया, मैं बोला आज तक नहीं होता। मैं वो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सिमिलरली इसमें कोई ऐसे झूठे मिथ्स बनाए गए हैं किसी ने या स्प्रेड आउट है? So, Nirav, all cards, all tarot decks also have negative cards, which shows at times where, that maybe what the question which is being asked, हम्म। that person maybe is not of a good mentality, or maybe the time is not supporting you. So, there are these kind of different cards which also show negative impacts in life. ओके। There is suppose there is like in the Osho's and tarot cards, there is a card called the mind card. The ओके। mind card is the card which we take as most most negative, so to say, that if that card comes in any reading, so we are supposed to handle that person with हम्म। a lot of care, अच्छा। because the underlying reading of the card is that हम्म। the person maybe is not in a good frame of mind who is asking you the question. So ओके। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उनको कुछ रेमेडी दें तो वो पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम्म। बिकॉज the card itself is showing that the person is not stable in his mind at the moment. Maybe he is maybe he is angry or frustrated, or maybe going through a phase of life where he will not believe you. तो ऐसी परिस्थिति में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रीडर टेक्स केयर and is very careful about how you explain the cards to your client. Having said that, there is no direct negativity on somebody, ओके। and all these things are myths. सिर्फ केवल एक कार्ड आने से कुछ नहीं हो जाता है. सी, any tarot guidance, and even as an astrologer and tarot person yourself, you must be knowing यस। that occult is a guidance. यस। Just because you get a reading for a astrology and for occult, it is not necessary that everything will happen in that same way. It is just a guidance that things may happen this way. It will give you more, it is more probability rather than 100% accuracy, because there is no force greater than God in this world, ऑब्वियसली। and the biggest accuracy is God himself. So, there are myths created as per tarot also, for astrology also, for different decks also, but everything is myth. You must trust the reader with whom you are doing the tarot reading, is what my advice is. And readers in their responsibility must be very careful at the time of doing readings कि आपकी reading की वजह से किसी भी person को negative impact नहीं. ऑब्वियसली वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट बहुत गहरा होता जी, है। जी, yes. अब डेक कार्ड के अंदर में टैरो डेक कार्ड बोले या ओशो डेक कार्ड बोलिए, दोनों में सिंबल्स और इमेजेस रहते हैं। तो हाउ जी. दिस imaginary, the image, the picture, as well as symbol, it conveys a specific message to the reader.
तो ये कैसे वहाँ हेल्प करता है, क्योंकि इतनी सारी इमेजेस रहती, इतने सारे सिंबल्स रहते हैं, ये सारी चीजें याद कैसे कर पाते हैं, हाउ इट हेल्प यू एज अ रीडर? So, Nirav ji, at least in Osho Zen cards and even for other tarot decks, these symbols are very simple to ओके। understand, and they are also very relatable in things. Like ओके। I'll tell you in Osho Zen tarot cards, basic symbols like maybe the moon. If you see the moon, what does a moon symbolize? If you look at moon, what do you symbolize? इट्स What do you interpret if you see the moon? feminine energy, a soft nature, and very caring and sensitive nature of the person, जो भी है, ही है, शी है, ठीक है, तो इट्स Exactly. या। एग्जैक्टली सो जैसे आप ये बता रहे हैं, अब आई डोंट सी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, यू आर अवेयर ऑफ ऑकल्ट साइंसेस हाउ इट वर्क्स, बट दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स व्हिच यू नो a layman can also understand. And yes, moon symbolizes feminine energy only, and it symbolizes grace, it symbolizes happiness. So if a moon, somewhere in the moon the card comes, it says, it shows a happy, it shows a positive situation. Similarly, if there is some, maybe there is some green leaves that a card shows. I'm giving you an example. So, what does green leaves generally show? नेचर में अगर आप बताएंगे ग्रीन ग्रोथ, लीव्स, ग्रोथ तो आप दिखाता क्या है, इंटरप्रेट करते हैं उससे? ग्रोथ और एक्सपांशन दिखाता है, कामनेस दिखाता है, Exactly, या। exactly. So, green leaves will be growth. It will be new life. It will be abundance. तो इस तरह से, जैसे अभी आपने बताया, छोटे छोटे सिंबल से यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ट्राइंग टू डिपिक्ट. ओके। अच्छा मिनल, एक और बात होती है कि अब इतने सारे कार्ड है, डेक कार्ड, तो कोई स्पेसिफिक डेक कार्ड था आपके जीवन में जो आपको बहुत रिजोनेट किया कि अरे हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी तरफ कनेक्ट कर रहा है, ये मेरी रीडिंग के साथ में? ऐसा कभी हुआ कोई स्पेसिफिक कार्ड आपने रीडिंग के लिए निकाला, आइदर फॉर योर ओन सेल्फ और इवन फॉर अ क्लाइंट, और फिर इट गेट कनेक्टेड विथ योर सोल, ऐसे कुछ मोमेंट? So by the grace of God, Nirav, all the cards always resonate. Whatever readings happen, even with clients and even with myself, the cards that generally are picked out always resonate with me. But the very first time where where I had learned tarot, ओके। and when I wanted to test it with my master, I had two cards picked up for me about what I am feeling. And at that point of time, I was looking for a job, अच्छा। but I just wanted to test the deck, हाँ। that how, whether I would get an answer. ओके। And I got two exact cards which gave exactly what I was feeling, वाह। with the exact emotion and with an exact prediction of the time where I would get my job. And I did get my job within the same time period as was told by my reader. ओके। 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 ओके, So मतलब। this was the fighting card, which was showing that I'm fighting with my current position, with हम्म। my circumstances, which I was at that point. It was a difficult time for me. And हम्म। it also showed a new opportunities card, which हम्म। was the innocence card, which depicted that, although you are very wise and experienced, you हम्म। are having trouble at this point, but the universe will help you and you will get a good job at the earliest. अरे This was the reading. It resonated with me, and I was able to get a very good job within the next 2 months. वाह, मतलब So कहीं that is what I हाँ। always feel that this was one of my best and most वाह। interesting experiences, हाँ 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 हाँ। which also motivated me further to move into tarot. ओके। ओके। ओके, मतलब ये एक्सपीरियंस होने के बाद फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे तो ये सीखना ही है ओशो जैन का? बिल्कुल सीखना ही है जी. एक एक तरह से बोलते हैं ना कि प्रूव हो गया that tarot is working, वर्किंग। and yes, energies are connecting, हाँ, and I will get answers for my question. मैं इसलिए पूछा ये बात क्योंकि कई लोगों को लगता है ये एक अंधविश्वास है, कार पे कुछ भी ये लोग बोल देते नहीं थे नहीं, कार्ड वाले। बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है. ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट होता है. हम्म। देखिए, विश्वास का ऐसा है कि आप मानो तो भगवान है, ना मानो तो मूर्त है. हाँ सो बिल्कुल। बस वो चीज है कि यू मस्ट वर्क विथ योर एनर्जीज, यू हम्म। मस्ट हैव फेथ. इफ हम्म। यू आस्क योर क्वेश्चन विथ फेथ, विथ योर ओन फेथ, and with faith on the tarot, tarot helps.
डेफिनेटली डेफिनेटली। एक अगला प्रश्न मिनल ये है आपसे कि डेली रूटीन में टैरो डेक कार्ड ओशो एंड रीडिंग कार्ड कैसे हेल्प करता है मेडिटेशन के लिए, डेली रूटीन में कोई डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन, जैसे जॉब का रहता है, मैरिज का लेता है, करियर को लेकर रहता है। कुछ लोगों को दो बार दो जॉब मिलती है एक साथ में, कंफ्यूज होते हैं कि मिनल जी मैं ये जॉब लूँ या ये जॉब लूँ, ऐसा भी होता है। So how this Zen card reading help into the daily guidance or even for a meditative, the spiritual purpose also? So ideally, Nirav, there are a lot of aspects to this. Firstly, for meditation also you can use कि आप cards रखिए, cards खोलिए and meditate कीजिए. So Okay. when you meditate, your energy moves to the cards, and you should also chant with the cards. So Okay. with the cards open, so that it gives you more energy as a reader. Okay. That's the way you should meditate with it. Okay. रही बात आपकी डेली रीडिंग्स के लिए, every day morning you can pick out a card saying how my day will be, so it gives you an advanced guidance about a daily reading on how your day can move. Okay. That is one. If you want to know about your job, Hmm. समझो जैसे आपने बताया कि दो जॉब्स हैं, तो Hmm. कौन सी बेटर रहेगी, तो उस हिसाब से अगर दो जॉब्स हैं तो दो जॉब्स के दो कार्ड्स निकाले जाते हैं डेक में से, Hmm. and depending on whichever card is better and Hmm. whichever option is better, a better option is suggested to you. So Okay. that's how job can, a job prediction can be given Okay. on which job is better. Okay. So when we talk about a job, तो बिजनेस कम्युनिटी वाले इसका भी क्वेश्चन आता है, तो the similarly can this also then reading cards can also help into the other areas like business, relationship, career selections, selection Absolutely. for a soulmate, मतलब मैरिज के लिए भी। यस यस यस, आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा. क्या यू बात कैन है। जस्ट मे बी यू कैन जस्ट ले आउट द डेक, हाँ। एंड डेक में से आप एक कार्ड निकालेंगे तो आई कैन टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर स्पाउस, दैट हाउ योर स्पाउस विल बी. ओके। सो यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड थ्रू द टैरो. अब यहाँ पर एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि जी. बहुत से लोग एक ही मॉडलिटी को लेकर चल रहा है, आई एम वर्किंग तो 6 डिफरेंट मॉडलिटी। ठीक है, तो हम्म. मुझे अभी कंफ्यूजन नहीं होता। तो अगर मैं ओशो जैन कार्ड की बात करूँ, तो अगर मैं मान लो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर ही करता हूँ और मैं जैन कार्ड को इंक्यूबेट करता हूँ अपने प्रैक्टिस में, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट करती है दूसरे मॉडलिटीज को, कि या फिर इसकी रीडिंग अलग है तो बाकी सब की रीडिंग अलग इससे हटके हो रहती है, or it complement the other modalities also like numero astro vast? So, Nirav, as far as my understanding is, I am not very much aware of other modalities. I don't practice too much. But like I said in my introduction, that I have my mother who is a practicing astrologer and Vastu consultant. I also know a few people who are astrologers. And just for a testing purpose, I also tested some of my tarot readings against astrological readings for the same question, Okay. एंड मोटा मोटा आपको आंसर सेम ही आएगा उसके अंदर, अच्छा। इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, दैट मे बी इफ आई सजेस्ट जॉब ए ओवर जॉब बी, and हम्म। if you get the same question tested through a different modality, maybe through your kundli analysis and astrology, you will get the same answer. वो ओके। एस्ट्रोलॉजर भी आपको यही बताएगा कि आप यू टेक जॉब ए ओवर जॉब बी. But of मतलब course, other modalities work in different ways. So more or less, you can say that it complements your other modalities. कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन करती नहीं है दूसरी मॉडलिटी को। नहीं, बहुत चांसेस बहुत कम है कि कॉन्ट्रडिक्शन हो. अच्छा। बट देन अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, देन अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फेथ कि आप किस मोडालिटी में ज्यादा मानते हैं. हाँ, क्योंकि सो कई बार ये होता है कि नहीं हमारे तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला था, लोग जी, एक तो ही फिर modality- अल्टीमेटली देन इट इज अ मैटर ऑफ फेथ ऑन हम्म। व्हाट द जिसकी रीडिंग है वो इंसान किस चीज पे ज्यादा फेथ रख रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है. हाँ, ये बात सही है। अभी एक और क्वेश्चन है आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ से लेके, आप कैसे कनेक्ट हुए ओशो जैन कार्ड की तरफ? जैसे आपने बताया कि आपकी मदर है, शी इज एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, बट स्टिल हाउ यू कैन, बिकॉज आप चाहे तो एस्ट्रोलॉजी सीख सकते थे मम्मी से, आप चाहे तो वास्तु सीख सकते थे अपने मदर से, लेकिन जैन कार्ड ही कैसे कनेक्ट हो गया आपके? या किसी ने सुना था, या कोई ऐड आई थी, या किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था ओशो जैन? टैरो कार्ड भी आप चूज कर सकते थे, बट हाउ द ओनली द ओशो जैन कार्ड गेट कनेक्टेड टू योर सोल, कि हाँ यार ये क्या है, चलो पहले देखती हूँ।
So, Nirav, I genuinely feel that any kind of connection or any kind of learning that you get in occult Hmm. is by grace of God. Obviously, I agree. Straight up, very straight, simple इसका जवाब है that it is by grace of God and Hmm. it is by divine calling that you get attracted to a certain modality or a certain way of occult. Hmm. So even in my case, I was just very attracted by tarot cards. I Hmm. always thought कि केवल कार्ड्स देखने से कैसे पता चल सकता है कि कि कैसे रीडिंग हो. हाँ हाँ. And so once I just joined a tarot workshop हम्म. first, and उस workshop के चलते within 1 hour there were certain basic symbols that were taught to us, and then certain practice readings were given, and I found that very interesting and very attractive. हम्म. और जैसे ही मैंने आपको बताया, उस टाइम मैंने वो मेरी जॉब वाली रीडिंग भी करवाई थी. सो हम्म. वंस एवरीथिंग felt fine for me in 2 months, हम्म. I thought why not take up the course and start learning. अच्छा, ग्रेट. अभी जैसे आपने अपने एक एक्सपीरियंस बताए, कैन यू शेयर सम अदर डीप ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, मे बी ऑफ योर रिलेटिव, मे बी ऑफ सम ऑफ योर क्लाइंट, यू डोंट नीड टू रिवील एनीवन नेम, तो वहां पे ताकि दर्शकों को ये पता चले कि हाँ, केवल अपने बारे में आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हो, तो कोई ऐसी कुछ केस स्टडी आप बताना चाहोगे मिनल, इफ यू डोंट माइंड, तो अबाउट एनीवन विदाउट रिवीलिंग द नेम ऑफ द पर्सन. So, Nirav, like I told you, that depending on what questions are asked, you हम्म. can also, understand कि किसी पर्सन का नेचर कैसा होगा या हाँ. आपका रिलेशनशिप उस पर्सन से कैसे होगा. सो हम्म. आई हैव नॉट हैड एनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज सच, बट क्लाइंट्स की रीडिंग ऐसी रही है कि जिनके बारे में मैंने बताया है रीड करके हम्म. कि this person is maybe of this nature and this is how they are trying to act with you. It हम्म. is exactly, it has worked out and ओके. it has also helped them make better decisions. We've also had very sensitive topics like extramarital affairs. वो भी दिख जाता है कार्ड्स के अंदर से कि अगर किसी का extramarital affair हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो उस काइंड की चीजें भी हमने डिटेक्ट करी हैं, अच्छा. एंड इट इज वेरी हेल्पफुल हाँ because it helps you make a decision, no, about your life. हाँ हाँ हाँ. मतलब, सो इस तरह से अच्छा बहुत एक्सपीरियंस रहा है. तो आप ऐसा कंसल्टेंट टर्न हो चुके हो अलॉन्ग विथ योर प्रैक्टिस ऑफ द फाइनेंस, लेकिन अगर मान लो कोई बंदा जिसके पास ना कोई मम्मी हो ऐसे एस्ट्रो वास्ट्रो वाली कोई बैकग्राउंड ना हो, उसको अगर सीखना हो, एक्सप्लोर करना हो ओशो जानकार के लिए, तो वो कैसे करे? क्या इसकी ऑनलाइन वर्कशॉप ही होती है, ऑफलाइन वर्कशॉप होती है, क्या इसके स्पेशल क्लासेस होते हैं, क्या इसकी कोई टेस्टिंग होती है कि पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा फिर यू हैव बीन, ऑलरेडी आपने कहा है इसमें कोई भी सीख सकता है, देयर इज नो एज और जेंडर बार ऑल्सो, राइट, तो राइट, राइट. हाउ वन कैन एक्सप्लोर दिस ओशो जैन कार्ड? So, Nirav, there is a lot of, there are many online classes available for Osho Zen cards very easily now. ओके. So, and a lot of readers on Instagram, on Facebook, on all the social media platforms are hosting a lot of classes, lot of workshops. So, the simplest way I feel to do is you attend a workshop from any of the readers and see whether you get comfortable with them, with their their way of teaching, and whether you are feeling fine, you're feeling connection with the understanding, and once you feel connected, then you can maybe do a class. ओके. It is very simple, it doesn't require any prior knowledge, and online आजकल सब कुछ बहुत easily available है versus online versus offline. ओके. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कमर्शियल्स, तो हमको अगर मोटा मोटा पता चल जाए कि मतलब इसकी क्या स्टार्टिंग ये रहती है कंसल्टेशन फीस, अगर कोई कंसल्टेंट आता है, मैं आपके बारे में नहीं पता कि आप कितना चार्ज, पर एक मोटा मोटा अगर बता सकते हो कि कितनी लेते हैं, अगर किसी को अप्रोच करना तो हर एक का एक बजट भी रहता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं कि अरे ये, Right. हाँ, तो व्हाट कैन वन कैन एक्सपेक्ट अ कमर्शियल्स इफ ही और शी कंसल्ट यू और एनी अदर जैन कार्ड रीडर? So, Nirav, commercials on consultation are a very subjective thing, ओके. depending on how experienced the tarot reader is, or how or what he wants to basically achieve. तो tarot readings के generally prices रहते हैं. Generally, it's very proportional to the experience. More experienced tarot readers and more experienced consultants generally charge more
money per this thing. There are also commercials vary in terms of session also, that there are readers who take like 5,000 rupees a session, which ओहो, is about 30 minutes. और 30 मिनट्स में आप उनसे दो तीन चार जितने क्वेश्चंस हैं उतने पूछ सकते हैं. अच्छा, वरना ऐसे भी होते हैं कि पर क्वेश्चन वाइज दे टेक एनीवेयर बिटवीन 300 to 500 rupees or ओके, 600 rupees. So ओके, depending on what kind of reader you are approaching, आपको commercials होंगे. But generally it is very affordable. I think in today's day and time, something between 500 to 1,000 rupees is a very normal consultation charge, where which anyone and everyone can, afford. ओके, ओके. एंड फॉर व्हाट अबाउट द टू गेट ट्रेन, तो उसकी फीस या क्या रहती है अगर कोई टीचर सिखाता है? ठीक है, क्या रेंज में वो टीचिंग की फीस हो सकती है अगर किसी को सीखना ही है एज अ बिगनर? अच्छा. So teaching fee is also, Nirav, I think in today's day and time is very affordable because of advent of Instagram and all these social media platforms. Anywhere between 10 to 15,000, ओके, you can do this small course where, which gives you a beginning and gives you practice readings, the first initial practice readings of the tarot. And this is at par with other tarot classes also. ओके, आप जो भी deck ले लेंगे, ओके, 10 to 15,000 rupees के generally classes होते हैं, ओके, which is maybe 10 to 12 classes, or depending on who the reader is. Generally, it is also taken in 2 to 3 days workshop. ओके, जैसे भी है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि 10 to 15 days and 10 to 15,000, sorry, ओके, and about a month of course classes. And ओके, then there is practice. आप ओके, मतलब रीडिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इट इज बेटर. ऑब्वियसली. एंड अगेन व्हेन आई टॉक, जैसे ट्रेनर आपके भी रहे जिन्होंने ट्रेन किया, तो उसमें कोई फिर रिक्वेस्ट राइट है कि पहले आपको 10 साल का ही अनुभव होना चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस का? मीन व्हेन आई टॉक द क्लिनिकल प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस ऑफ द जैन कार्ड, उसके बाद ही आप कोई स्पेसिफिक कोर्स करो, टीटीटी ट्रेन द ट्रेनर, या फिर कोई भी आफ्टर स्पेसिफिक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही कैन जंप इनटू द ट्रेनिंग पार्ट एज टू बिकम अ मेंटर इनटू द ओशो जैन कार्ड? So, Nirav, regarding this, I think to start professional consulting, हम्म. it's the way I had learned it. हमको बताया गया था कि you should do at least 50 readings before you start giving out readings to other people, अच्छा. so that your intuition is better, so हम्म. that your interpretation of the cards is better, and ओके, overall you have a better way of understanding with and dealing with problems. ओके, ओके, So it is advised that you have about, at least it was advised to me by my mentor, that you do at least 50 readings. 50 readings means 50 questions हाँ, before you start taking any professional online or offline consultation. ओके, ओके, गॉट इट. And जैसे आपने and for readers itself, it is also advised that you maintain a very good, clean lifestyle, which हम्म, means के no alcohol, no non-veg. You should have a good, just जिसको हम बोलते हैं सात्विक lifestyle. लाइफस्टाइल. So the modality also blesses you. You must, every day have आपको पूजा, meditation, chanting करेंगे तो अच्छा है. हम्म, अच्छा क्लीन खाना खाना चाहिए. ओके, uh, बराबर you should have like proper cleanliness. So हम्म, these kind of basic things that you must maintain, हम्म, and so that you can also respect the cards and become a good tarot reader. okay. So when we talk about the reader, he should follow the certain principles. Is there any principle laid down for the prospect, for the client, कि अगर वो आता है, जैसे आपने बोला ये सनसेट के बाद नहीं किया जा सकता, तो वो, जी. तो क्या उन प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट के लिए भी कोई पैरामीटर्स रखे गए हैं कि भाई वो प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, वो अल्कोहल कंज्यूम? नहीं, क्लाइंट के लिए नहीं. क्लाइंट के लिए, नीरव, देर आर नो पैरामीटर्स, ओके. बिकॉज क्लाइंट इज द पर्सन हु वी आर ट्राइंग टू हेल्प. हम्म, तो जिसको हमको हेल्प करना है वो तो नीड में ही है ना, तो उसके लिए हम कैसे पैरामीटर रख सकते हैं? बट बिकॉज हमको हेल्प करना है, इसलिए हमारे लिए पैरामीटर है, ओके. दैट सो दैट द यूनिवर्स कैन गाइड अस बेटर. वी हम्म, हैव लाइक सर्टेन पैरामीटर्स दैट वी मस्ट फॉलो. नथिंग फॉर द क्लाइंट. okay. Do you look at this Osho Zen card as a very good prospective, a big career in a later year, क्योंकि इंडिया में तो अभी धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है? तो आपको लगता है कि ये भी एक करियर चॉइस बन सकता है ऑफ बीट करियर के फॉर्म में, ओशो जैन कार्ड जी रीडिंग? जी, एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट माय मेंटोर जिनसे मैंने सीखा था, ही हम्म. हैज अ करियर ऑफ अबाउट 25 years
वाह। only in Osho's and tarot readings. अच्छा। And there are a lot of additional workshops that you can do. Also have client bases, because this is like a this is like a gift from God, that हम्म। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कभी भी अपना टैरो डेक खोलिए, हम्म। अपने कार्ड सजाइए, एंड यू कैन इंस्टेंटली गेट द आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स. So, ओके। this can be a very good career option, हम्म। especially for women. I think for women, and who are at certain stages of the life, have more of family responsibilities हम्म। and children. And अगर उस चीज को लेके अगर आप ऐसा कुछ सीख सकते हैं, तो हम्म। एक अच्छी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है. हम्म। स्मॉल सोर्स ऑफ इनकम, एंड देन मे बी गोइंग विथ योर पॉपुलैरिटी, यू कैन ऑल्सो अचीव गुड हाइट्स. ओके। जस्ट लास्ट क्वेश्चन मीनल जी, एक है कि जैसे कई बार मैंने डेक रीडर से देखा है टैरो कार्ड कि दे कीप देयर डेक कार्ड जस्ट बिलो द लोटस फीट ऑफ देयर डाइटी, कि जो उनके भगवान को वो मानते हैं। तो क्या इसमें भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स हैं क्या? आपको डेक कार्ड को बहुत संभाल के रखना है, नीट टाइडी होना चाहिए, उसको धूप अगरबत्ती लगानी है, या फिर उसको यस. इष्ट देवता के पास रखनी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज हो सके? ऐसा कुछ जी रिचुअल है जी इसमें? जी. यस यस नीरव, इस इनमें भी ऐसा ही प्रिंसिपल है जैसा आपने बताया, हाँ। दैट कार्ड्स बिफोर यू गिव द रीडिंग, फ्रॉम टाइम टू टाइम, लाइक एवरी 7 days, यू हम्म। मस्ट कीप देम एट द लोटस फीट ऑफ योर डाइटीज, ओके। जिनको भी आप मानते हैं. हम्म। और बिकॉज इट इज अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, हम्म। इट इज अ वे थ्रू विच आपको सवालों के जवाब मिलेंगे. तो हम्म। उसको हम भगवान के दर्जे के पास ही रखते हैं, कि हम्म। गॉड मस्ट ब्लेस द कार्ड्स. तो सेम थिंग, कि आप उनको कीप इट एट द लोटस फीट ऑफ द गॉड, एंड आप उसको धूप अगरबत्ती दिखाइए एवरी अबाउट 7 to 8 days. यू हम्म। कैन ऑल्सो कीप चैंटिंग मंत्रास अराउंड इट. और अगर आपके घर में हवन या पूजा हो, तो आप उसको उनके पास रखें, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जीज उसमें इन द कार्ड्स कैन गेट अब्सॉर्ब, हम्म। एंड देन द कार्ड्स कैन हेल्प यू. ओके। सो यस. हाँ। और दूसरा ये भी है कि कई लोग अलाउड नहीं करते। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि वो बोलते नहीं, मेरे डेक कार्ड में किसी को, इवन मेरे स्पाउस को या मेरे पेरेंट्स को भी हम टच करने नहीं देते। तो ये भी एक कोई डू एंड डोंट में आता है कि आपको अपने डेक कार्ड किसी को टच करने नहीं देने। Yes, yes, yes. This is also a fundamental rule of the tarot, ओके। कि जो भी tarot reader है, only that person's energy must be connected with the cards. ओके। ओके। और मान लीजिए। Because yeah, because that person has to guide other people. तो ओके। उस person का उस कार्ड से connection होना बहुत जरूरी है. And to maintain that connection, it is advised कि आपके tarot deck को आपके अलावा कोई भी टच ना करे, including the clients. ओके। सो अगर क्लाइंट्स को भी बताना है कि उनको समझिए कि कौन सा कार्ड दे आर फीलिंग कनेक्टेड टू, सो देन दे कैन जस्ट पॉइंट टुवर्ड्स द कार्ड्स. जब भी आप स्प्रेड लगाएं, तो दे कैन पॉइंट टुवर्ड्स द कार्ड्स, बट इवन दे आर एडवाइज टू नॉट टच द कार्ड्स. और अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक किसी एरर के किसी कारण से टच हो गया, उसमें क्या रीडिंग में फॉल्ट आती है? अगर मान लो किसी ने टच कर लिया, आपके क्लाइंट ने। तो टच कर लिया तो नीरव, आइडियली इतना इतना बड़ा कुछ उसमें इशू नहीं है. तो नहीं है। वी कैन जस्ट रीशफल द कार्ड्स अगेन एंड मेक अ फ्रेश स्प्रेड, हम्म। एंड देन स्टार्ट द प्रोसेस अगेन, ओ, जस्ट टू इंश्योर दैट कि कुछ एनर्जी डाइवर्जन ना हो जाए. तो हम्म। रीडिंग में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर इट इज एडवाइज्ड टू नॉट टेक दैट रीडिंग जहां उन्होंने टच किया. ओके। वन मोर क्वेश्चन। अब एक और चीज मेरे के दिमाग में आ रही है कि जैसे कई जो कंसल्टेंट रहते हैं, वेदर इट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, कि वो जब कंसल्टेशन करते हैं, आफ्टर द कंसल्टेशन दे फील वेरी लो at a physical level, mental level, and spiritual level. So does it happens also with the deck card reader also after doing? बहुत बार नेगेटिव लोग भी आते हैं, ऑब्वियसली हमारे जी. पास नेगेटिव लोग ही आते हैं, मैं तो बोलूंगा। तो उसमें क्या वो इम्यून पावर लो फील करते हैं, या फिर मेंटली एकदम लो फील हो कि किसी ने पूरी एनर्जी सक कर ली है आफ्टर डूइंग द रीडिंग? जी जी जी, ऐसे होता है नीरव. Yes, you are correct about this. ऐसा tarot cards में होता है. I have personally experienced it when ओके। I had a couple of clients. हम्म। Especially there was one client जिन्होंने मेरे से back to back 3-4 questions पूछ लिए थे, and there was a lot of negativity in her life. अच्छा। पर से उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर बहुत सारे इश्यूज थे जिनके बारे में उन्होंने सवाल पूछे थे.
हम्म। एंड जैसे ही मैंने उनकी रीडिंग की, आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। अच्छा। मुझे लग रहा था कि बस अब मुझसे कोई काम नहीं होने वाला, एंड हाँ। आई जस्ट वांटेड some rest after that. So हम्म। that is also how energy communicates with you. If एग्जैक्ट। you have positive people, positive energy, then even the tarot reader feels energized और उनको भी अच्छा फील होता है, versus जैसे आपने बोला कि नेगेटिव अगर जब रीडिंग होती है तो हमारी एनर्जी भी नेगेटिविटी की तरफ इट गेट्स अट्रैक्टेड एंड एनर्जी लेवल्स बेसिकली कम डाउन. ओके। So that is also a sign for you कि if you are feeling good, then the client is in a हाँ। good space, and आपको किस हिसाब से उनका कंसल्टेशन करना है. And if हाँ। you are feeling negative, then it is also a universe sign from you also कि आपको मतलब थोड़ा स्लो लेना चाहिए. Right. अच्छा, अगर ये जैसा आप बता रहे हो कि ये आपको भी ऐसा फील होता है, तो डू यू हैव टू डू एनी स्पेशल रिचुअल्स और एनी एफर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग एनी रीडिंग फॉर द क्लाइंट, और यू कैन डायरेक्टली गो इन इम्प्रॉम्प्ट मैनर, या फिर कोई कवच So बवच करना पड़ता है, प्रार्थना yeah. करनी So पड़ती है? like I said, Neerav, before starting any reading with the client, हम्म। generally the reader has to do about 5 to 10 minutes of meditation. ओके। एनी मेडिटेशन, आपके जो भी इष्ट देव हैं, हम्म। आप उनकी मेडिटेशन करें, हम्म। उनकी गाइडेंस मांगे, उनका सपोर्ट मांगे, सो दैट योर मेंटल हेल्थ एट दैट पॉइंट इज प्रॉपर, और हम्म। आप सही रीडिंग दे पाए. फिर ओके। आप 2 मिनट से 5 मिनट तक आप यू कैन डू अ मेडिटेशन कंटिन्यूअसली विथ द क्लाइंट, सो दैट योर एनर्जीज आर अलाइन, एंड ओके। देन इट इज एडवाइज्ड कि आप कार्ड्स पिक करें. ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे लगता है मिनल जी यहाँ पे काफ़ी इन डेप्थ बातें हुई, मतलब वो सारे मैंने, मुझे लगता है एक एफएक्यूज हमने यहाँ कवर कर दिए थे। वैसे तो और भी इस पर जा जा सकते हैं कि रिलेशनशिप और ओसोजन कार्ड करियर एंड उस पर और डीप में और भी 50 क्वेश्चन निकल आएंगे, पर मैं सोचता हूँ अगली बार आपको फिर बुलाऊं, जहाँ पे हम इसके बारे में दूसरे पहलू पर भी हम देख सकते हैं। जीवन के 4 सिद्धांत हैं: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। तो इन 4 स्तंभ के ऊपर हम कहीं और फिर किसी और एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इट इज ओके टू हैव द फुल स्टॉप ओवर हियर, बिकॉज लेट द पीपल एब्जॉर्ब दिस एनर्जीज ऑल्सो, जिनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ताकि वो समझ पाए कि ये जैनकार्ड एक्चुअली है क्या। ठीक है। सो वंस अगेन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, क्या आपने समय निकाला वापस और हमको ऐसी इंफॉर्मेशन दी, जो मुझे लगता है शायद इंटरनेट पे इस चीज की कमी है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन की। Thank you, Minal, for coming for my podcast show. And once again, thank you. Thank you so much, Nirav. I hope I was able to give the right knowledge and I Definitely. was able to share a good experience with Thank your viewers. Thank you for having me on the show you. and hoping to see you again soon. Thank you so much. Thank you. Thank you.